Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of Indian Stamp Act, which came in the exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services from the year 2011 to 2023. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं. S34 with respect to the Indian Stamp HP Amendment Act, where in case of any sale, several instruments are employed for completing the transaction. Choose the incorrect response given below. All right. फिर देखिए ऑप्शन ए है the principal instrument only shall be chargeable. प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा ओनली, उस पर ही ड्यूटी लगेगी. इसका मतलब विद ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन द स्केड्यूल. बिल्कुल ठीक है, ये मेंशन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. फिर द अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद ए ड्यूटी ऑफ ₹1 इंस्टेड ऑफ द ड्यूटी. नो, ईच ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट उस पे लगेगी, अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं. तो इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग. फिर अब पार्टीज में डिटरमाइन फॉर देमसेल्फ व्हिच ऑफ द प्रिंसिपल शैल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट. ये बिल्कुल ठीक है. फिर ड्यूटी चार्जेबल ऑन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स और डिटरमाइन शैल बी द हाईएस्ट ड्यूटी व्हिच वुड बी द चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द सेड इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड. ये सारे सेक्शन 4 में ही मेंशन किया गया है. तो बी इसका आंसर रहेगा. बी इज रॉन्ग. थैंक्स. Next 7, where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any stock or of any marketable other security, such duty shall be calculated on the value of such stock or security according to the average value thereof on the day of date of instrument. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? मेंशन किया गया है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. नेक्स्ट इज 8. A owes B ₹1,000. A sells a property to B, the consideration being ₹500. The release of the previous debt of 1,000, मतलब 1,000 रुपये का डेट छोड़ दिया और 500 रुपये ऊपर से दिए. तो अब स्टैम्प ड्यूटी कितने पे पेएबल होगी? प्रॉपर्टी तो 1,500 रुपये की है तो 1,500 पर पे ही होगी है. तो सी इसका आंसर हो गया. और एक कहाँ मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 24 और ये है इलस्ट्रेशन 1. नेक्स्ट 9. Under the Indian Stamp Act, which of the following instrument cannot be stamped with adhesives? तो देखिए इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे हो जाएगा, नोटेरियल एक्ट्स पर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इस पर भी होगा. बट चेक्स पर कभी स्टैंप नहीं लगती है. तो डी इसका आंसर हो गया. चेक तो आपने देखे ही हैं, हर किसी ने देखा होता है चेक, कहीं स्टैंप नहीं होती है उस पर. तो डी इसका आंसर रहेगा. Next 46. Under Indian Stamp Act, the expression conveyance includes conveyance on sale. इस बिल्कुल ठीक है ये. फिर conveyance does not include instrument by which movable property is transferred. No, does include है ये हो गया गलत. फिर through conveyance property is transferred inter virus. ये बिल्कुल ठीक है. conveyance की डेफिनेशन कहाँ मेंशन की गई है? सेक्शन 210 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. तो इसमें 1 and 3 are correct. C is the answer. Next 47. Which of the following provision was inserted by Indian Stamp Act to prescribe provision for stamp duty on counterparts when duty is not paid on original instrument? That is section 6A. B is the answer. Next 48. Under Indian Stamp Act, all instruments chargeable with duty and executed by any person in India shall be stamped before or at the time of execution. C is the answer. का mention किया गया section 17 of Indian Stamp Act में. Next 2. Any person who A with intent to defraud the government of duty draw makes so and so so and so and so. So ये point A है, ये है B, ये है section 68 of Indian Stamp Act. आप देख सकते हैं ये है point C. The like intent practices contained or device not specifically provided by this act or any other law for shall be punished. कितनी punishment मिलेगी इसमें?
1000 रुपीज है एज पर सेक्शन 68. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3. एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सेल स्टैम्प्स हु डिसोबे एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 74 एंड बी. अब ये देखिए जो बी है ये होना चाहिए ए. ये बात करें सेक्शन 69 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट की, तो बी है एनी पर्सन नॉट अपॉइंटेड हु सेल्स और ऑफर फॉर सेल एनी स्टैम्प अदर देन, ये जो लिखा हुआ है वहीं पर इंडियन स्टैम्प एक्ट में. तो कितने पनिशमेंट है इसमें? 6 months और फाइन कितना है? 500 रुपये का. तो 2 ये रॉन्ग हो गया. ये 1 year है, ये है 6 months एंड फाइन 500 रुपीज. 69 सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नो मैजिस्ट्रेट अदर देन प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट हुज पावर आर नॉट लेस देन दोज ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास shall try to any offence under Indian Stamp Act as applicable in the state of HP as specified in its section 51. Section 51 क्या है? Allowance in case of printed form no longer required for corporation. तो ये इसकी बात नहीं करता, ये हो गया रॉन्ग. फिर से वही स्टेटमेंट लिखी हुई है और अब सेक्शन लिख दिया 71. 71 क्या है? जुरिसडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, और ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो गया. 81 भी नहीं है, 71 है सेक्शन ये, jurisdiction of magistrates. Next 5. Bill of exchange means bill of exchange as defined in Children Clauses Act. बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कहाँ की गई है? इंडियन स्टैम्प एक्ट में सेक्शन 2(2) में वहाँ लिखा हुआ है मीन्स एज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो यहाँ पर भी देखिए सेल ऑफ गुड्स है बी में, और सी में क्या है? बैंकिंग अमेंडमेंट, और देखिए डी है क्या? डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो यहीं से ठीक हो जाएगा, और देखिए 2(2) में है ये, डी इसका आंसर हो गया. पूरे सेक्शंस पूछे हुए हैं. नेक्स्ट 6. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? द एक्सप्रेशन लीज अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट हैज अ वाइडर मीनिंग एज कंपेयर्ड टू मीनिंग इन सेक्शन 105 अंडर 216 ऑफ स्टैम्प एक्ट. इफ लीज अंडर सेक्शन 216 ऑफ स्टैम्प एक्ट इंक्लूड्स देयर इन 4 स्पेसिफाइड कैटेगरीज सो एंड सो सो एंड सो एंड सो. पढ़ लेना ये. तो ये कौन से केस में कहा गया था? ये केस है नसीरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. 2018 की जजमेंट रिसेंट केसेस में था ये. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 7. नो इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी शैल बी एडमिटेड इन एविडेंस फॉर एनी पर्पस बाय एनी पर्सन हैविंग बाय लॉ और कंसेंट ऑफ पार्टी अथॉरिटीज टू रिसीव एविडेंस और शैल बी एक्टेड अपॉन, रजिस्टर्ड और ऑथेंटिकेटेड बाय एनी सच पर्सन और बाय एनी पब्लिक ऑफिसर अनलेस सच इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड. ये बात करें सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट की. Find the correct option in the following provisions. अब इसके रिगार्डिंग, however no more provision existed in this regard in the Stamp Act. वो है ये, इसके लिखा हुआ ये प्रोवाइजो का पूछ लिया इन्होंने. Any such instrument shall be admitted in evidence on payment of duty. कितना है? पेनल्टी ऑफ 5 रुपीज और 10 times. ये बिल्कुल ठीक है. फिर ये है इसका क्लॉज बी, where any person from whom a stamped receipt could have been demanded has given an unstamped receipt. Such receipt, if stamped, would be admissible in evidence against him. Then such receipt shall be admitted in evidence against him on the payment of penalty of 1 rupee by the person tendering it. तो पेनल्टी पेमेंट कौन करेगा? जिसने टेंडर किया है वो. तो बहुत ठीक है ये. सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 35 है ये. सर नेक्स्ट इज 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ बॉन्ड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट एज एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बॉन्ड की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में, और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय पर्सन ऑब्लाइजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड एज अ केस में बी. फिर एनी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय अ विटनेस एंड नॉट पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर whereby a person obliges himself to pay money to another. This is also correct. फिर any instruments so attested and whereby a person obliges himself to deliver grain or other agricultural produce to another. ये बिल्कुल ठीक है. तो all of the D इसका आंसर रहेगा. Next 11. Which of the following is not a lease under Indian Stamp Act as applicable to the state of Himachal Pradesh? तो डेफिनेशन कहाँ है? 216 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में पट्टा लिखा हुआ है. काबूलियत अंडरटेकिंग राइटिंग नॉट बीइंग काउंटर पार्ट, ये भी लिखा हुआ है. ये है ए, ये है बी. और फिर एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच 1 पर्सन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम, ये प्रीमियम की बात नहीं की गई है. डी है
by which tolls of any description are let and any writing, ये है इतना, यहाँ तक है ये सी और आगे लिखा हुआ है डी, तो इसमें रॉन्ग कौन सा हुआ? सी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12, आउट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट विच वन मे नॉट बी स्टैम्प्ड विद द एडेसिव स्टैम्प? बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट पर लगेगा, एंट्री ऑफ द एडवोकेट ये भी है, नोटरियल एक्ट्स पर, चेक्स पर नहीं होता। देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस पेपर देखेंगे अपना 1920 का, वहाँ में मिल जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश में ही। डी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया एडेसिव स्टैम्प्स के बारे में? ये है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डेल्ट इन डिपॉजिटरी आर नॉट बीइंग लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट? तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम पर्सन टू डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी टू बेनिफिशियल ओनर, तो ये लायबल नहीं होगी। ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनर फॉर सिक्योरिटी डेल्ट बाय डिपॉजिटरी, ये भी नहीं होगी। तो बोथ इसमें आंसर रहेगा, सी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 8A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में, और अमेंडमेंट से आया था। कौन सी अमेंडमेंट थी ये? अमेंडमेंट ऑफ 1996। नेक्स्ट 14, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया चार्जेबल विद ड्यूटी बट नॉट बीइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड आफ्टर फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया विद इन 3 months। ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 18 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। Next 15, all duties and penalties and other sums required to be paid for instrument not duly stamped may be recovered by the collector only by distress and sale of movable property of the person from whom the same are due, only by any process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue। तो दोनों में हो जाए, दोनों केसेस में either A और B, C is the answer। और एक कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 48 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट 35, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट मॉर्गेज इज ट्रांसफर ऑफ, देखिए थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट मॉर्गेज के बारे में नहीं लिखा गया है इंडियन स्टैम्प एक्ट में, बट हर जगह लिखा हुआ है मॉर्गेज प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 36, अंडर सब क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन 2, मतलब 214 जो है डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? इंस्ट्रूमेंट की। तो वेदर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट? नो, इट इज नॉट। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 37, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट अप्लाइज व्हेन एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेट्स टू मोर देन वन मैटर। बी इज द आंसर। 5 में लिखा हुआ है सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 38, सेक्शन 8B ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट विच डील्स डीम्यूचुअलाइजेशन स्कीम्स was inserted by Act 18/2005। D is the answer। Next 39, under Indian Stamp Act, in case of a certificate of sale, in the absence of any agreement to the contrary, the expenses for providing proper stamp shall be borne by purchaser, obviously, तो A is the answer। और एक का मेंशन किया गया सेक्शन 29, duties by whom payable। Next 40, the word chargeable used in subclause 6 of section 2 as applied to an instrument executed after the commencement of Indian Stamp Act means chargeable under Indian Stamp Act, obviously A is the answer। and उसमें ये भी लिखा हुआ है under any other law when such instrument was executed or where several person executed instrument at different time and first executed, तो ये यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये जो है ठीक नहीं है। Next 41, all duties and penalties under Chapter 4 of Indian Stamp Act may be recovered by collector। B is the answer। Next 42, provision regarding allowance for misuse stamps are provided in the Indian Stamp Act under Section 52। D is the answer। Next 43, the expression corporatization means mentioned in section 8B of Indian Stamp Act shall have the meaning as assigned in the Securities Contract Regulation Act 1956। C is the answer। और देखिए इस 8B से पहले भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस पेपर में, ठीक है ना, सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next 44, section 8A of Indian Stamp Act deals with provision regarding securities dealt in depository not liable to stamp duty was inserted by the same question, ditto question, a pretty question, Act 22 of 1996। C is the answer।
Next 45, soldier under Indian Stamp Act includes any person who is enrolled under the Indian Army Act 1911 is the answer. Definition कहाँ पे mention की गई है ये 225 of Indian Stamp Act. Next 46, settlement under the Indian Stamp Act means disposition of movable or immovable property both. C is the answer. This is again repeated question. And settlement कहाँ define है section 224 of Indian Stamp Act. Next 47, Madras Refinery versus Chief Controlling Revenue Authority Board of Revenue explains the application of section 4 of Indian Stamp Act. B is the answer. और अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे ना तो वहां पर देखिए स्कोप लिखा हुआ है. स्कोप में ये जो है मेंशन किया गया है ये केस. Next 48, under section 32 of Indian Stamp Act, who certifies the instrument? Collector. A is the answer. Next 49, section 35 of Indian Stamp Act denotes examination. No, ये होता है instrument are duly stamped inadmissible in evidence. B is the answer. ये examination and impounding of instrument ये section 33. Adjudication at to proper stamp ये 31. Allowance for spoiled stamps ये है 49. Next 50, under section 57 of Indian Stamp Act, the Chief Controlling and Revenue Authority refers the case arise in the state to the High Court. C is the answer. देखिए arise in the state लिखा, अगर UT हो तो फिर कौन सा आएगा? फिर UT of Delhi लिखा हुआ है बेयर एक्ट में सेक्शन में टू हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. ये हाई कोर्ट ऑफ स्टेट है जिस स्टेट का केस अराइज हुआ है. This is 3, under the Indian Stamp Act, lease means a lease of. देखिए इंडियन स्टैम्प एक्ट में लीज क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. बी इज द आंसर. और कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 216 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. Next is 4, settlement under the Indian Stamp Act means any non-testamentary disposition. A is the answer. और सेटलमेंट कई बार ही पूछ चुके हैं, कई बार बता भी चुका हूँ. सेक्शन 224 है ये इंडियन स्टैम्प एक्ट में. Next is 5, bill of lading under Indian Stamp Act includes a through bill of lading. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 24 of Indian Stamp Act. Next is 6, provision regarding special economic zone was inserted in section 3 of Indian Stamp Act in the year of 2005. D is the answer. By the Act 28 of 2005. D इसका आंसर रहेगा. और ये पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने बता दिया पहले ही. Next is 7, section 4 of Indian Stamp Act relates to sale mortgage settlement. तीनों के लिए है. D is the answer. Next is question number 8. For the purpose of section 8A of Indian Stamp Act, the expression beneficial owner shall have the meaning as assigned in. So that is Depository Act. A is the answer. एंड सेक्शन 8A है ये कैप कब आया था? इट वाज इंसर्टेड बाय एक्ट 22 ऑफ 1996 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 20 सितंबर 1995 जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था अमेंडमेंट वाला. ठीक है. लेटर ऑन इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 10 ऑफ 2000 विद इफेक्ट फ्रॉम 12 May 2000. All right. Next is 9, under section 9 of Indian Stamp Act, who may reduce, remit or compound the duties? Government. C is the answer. Next is 10, under the Indian Stamp Act, in case of counterpart of a lease, in the absence of any agreement to the contrary, expenses for providing proper stamp shall be borne by lessor. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 29, ड्यूटीज बाय होम पेएबल. Section 19, cancellation of adhesive stamp can be done only by the person who affixed the adhesive या फिर who executes the instrument, या फिर by the person who affix और by a person who executes. दोनों कर सकते हैं. C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन? सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में. नेक्स्ट 20, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट द ड्यूटी शैल बी लायबल इन ट्रांसफर ऑफ
बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, डी इज़ द आंसर। देखिए इसके बारे में मेंशन किया गया है, ये जो तीनों हैं इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 8A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट की कहाँ पर ड्यूटी लायबल नहीं है किस किस के ट्रांसफ़र पर, तो ये मेंशन किया गया, ये मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो 8A ये आया था बाय एक्ट 2022 ऑफ 1996 की अमेंडमेंट से। नेक्स्ट 21 सेक्शन 23A ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट डील्स इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड विद mortgages of marketable securities, B is the answer. Next 22 impressed stamp includes labels affixed and impressed by the proper authority, C is the answer. Next 23 whether the guarantees agreements fall within the purview of section 4 subsection 1 of Indian Stamp Act, no. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है? सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सिंगल ट्रांजैक्शन फॉर सेल, मॉर्टगेज और सेटलमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट 24 अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट इन केस ऑफ कन्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टैम्प शैल बी बोर्न बाय द ग्रांटी, ए इज़ द आंसर। जो बायर है, सपोज अब जैसे कि आपने किसी सोसाइटी में घर लिया तो उसकी कन्वेंस डीड बनेगी पहले, ठीक है ना। तो जो सेलर है, तो आप बायर हो तो आप कौन हो? गारंटी हो। गारंटर जो है वो ऑब्वियसली नहीं पे करता, आपको पे करना पड़ता है सब, ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट 25 ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड बिफोर और एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, सी इज़ द आंसर। Next 26 which section of Indian Stamp Act contains special provision as to unstamped receipts, that is section 34, C is the answer. Next 15 under the Indian Stamp Act stamp means any mark, seal, endorsement, all of these, D is the answer. section कौन सा Indian Stamp Act में? यह definition section 226 of Indian Stamp Act. Next 16 under section 72 Indian Stamp Act the offence committed in respect of any instrument may be tried in any district in which such instrument is found, A is the answer. Next 17 under the Indian Stamp Act the government may reduce duties prospectively retrospectively, दोनों हो सकते हैं, prospective या फिर retrospective, C is the answer। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 9 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। Next 18 who prescribe a rate of exchange for the conversion of foreign currency into the currency of India for the purpose of collecting the stamp duty, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इज द आंसर। और सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 20 का 2 इंडियन स्टैम्प एक्ट। नेक्स्ट 19 अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अनस्टैम्प्ड इफ रिटन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, सी इज द आंसर। Next 20 under the Indian Stamp Act in case of lease the duty is payable by the lessee, B is the answer। अरे ये काउंटर पार्ट में है अगर तो फिर लेसर देगा। ये कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 29 ड्यूटीज बाय whom payable। Next 21 section 31 of Indian Stamp Act deals with adjudication as to proper stamp, A is the answer। Next 22 the provision regarding allowances for stamp are contained in Chapter 4 of Indian Stamp Act, B is the answer। Next 47 which provision of Himachal Pradesh Courts Act provides for appeals from district judge or additional district judge, तो ये है section 20, B is the answer। Next 48 which provision of Indian Stamp Act describes the instrument which may be stamped with adhesive stamps, तो ये सेक्शन 11, C is the answer। Next 49 the liability to pay the stamp duty arises before or at the time of execution of the instrument, ये सेक्शन कौन सा है? The section 17, A is the answer। Next 50 which section of the Indian Stamp Act provides penalty for failure to cancel adhesive stamps, that is section 63, B is the answer। Next 39 under the Indian Stamp Act executed and execution used with reference to instrument means signed and signature, C is the answer।
और ये डेफिनेशन में प्रोवाइड किया गया है कहाँ पर, सेक्शन 212 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट 40, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट द एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टैम्प इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड शैल बी बोर्न बाय अ पर्सन ड्यूरिंग सच इंस्ट्रूमेंट मेकिंग एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ द अबव। कोई भी कर सकता है इसमें। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 29, ड्यूटीज बाय होम पेएबल। नेक्स्ट 41, ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट इन केस ऑफ कन्वेंस इज पेएबल बाय दी। अब कन्वेंस के केस में कौन देता है, ग्रांटी। ए इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया, ये भी वहीं पर सेक्शन 29 में ही मेंशन किया गया है, क्लॉज सी में। फिर है 42, प्रोविजन रिगार्डिंग एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प कंटेन्ड इन सेक्शन 31, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 43, हु मेक्स रूल टू कैरी आउट जनरली द पर्पस ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट, एट इज स्टेट गवर्नमेंट, बी इज द आंसर। सेक्शन 74 प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स। नेक्स्ट 44, सेक्शन 72 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग, 72 में क्या है, प्लेस ऑफ ट्रायल, ए इज द आंसर। ये पेनल्टी फॉर पोस्ट डेटिंग कहाँ पर है, सेक्शन 68 में है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, ये है 71। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल रिलेटिंग टू सेल ऑफ स्टैम्प, ये है 69। नेक्स्ट 45, ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 17 इंडियन स्टैम्प एक्ट। नेक्स्ट 46, ऑल ड्यूटीज एंड पेनल्टीज अंडर चैप्टर 4 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में बी रिकवर्ड बाय, कौन रिकवर करता है, कलेक्टर, ए इज द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया है ये, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट व्हिच केम इन द एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।